کے آغاز میں بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی بے قابو ہے، یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک اور نیا طوفان۔ مختلف برانڈز کے شیمپو 10 سے 20 روپے تک مہنگے، ٹی وائٹنرز 21 سے 32، خشک دودھ 50 سے 100 روپے مہنگا۔ آمدن کم، خرچے زیادہ، بڑھتی قیمتیں جیب پر بھاری ہیں، متوسط طبقے کی دہائی۔ آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک اور نیا طوفان آ چکا ہے۔ مختلف برانڈز کے شیمپو 10 سے 20 روپے تک مہنگے، ٹی وائٹنرز 21 سے 32، خشک دودھ 50 سے 100 روپے میں مہنگا ہونے لگا۔ اسی پر مزید بات کریں گے شہراز بٹ سے۔ شہراز بتائیے گا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر مہنگائی جو ہے وہ یومیہ بنیادوں پر بڑھنے لگی ہے، اور اس وقت بات کی جائے خشک دودھ کے حوالے سے، بچوں کے دودھ کے حوالے سے، اسٹیشنری کے حوالے سے، گھی آئل کے حوالے سے، تو قیمتیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر بڑھنے لگی ہیں۔ اب دوبارہ سے قیمتیں بڑھی، جس کا اطلاق جو ہے وہ منڈے یعنی آج سے ہوا ہے، اور نئی قیمتیں جو ہیں وہ آج صارفین کو نئی قیمتوں پر، مہنگے داموں پر اشیاء جو ہے وہ دستیاب ہوں گی۔ خاص طور پر بات کی جائے اشیاء خوردنوش کے حوالے سے، وہ بیسک نیڈز جو کہ کچن آئٹم ہے، جس میں آئل گھی شامل ہیں، ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ خشک دودھ بھی مہنگا کر دیا گیا ہے، بچوں کا دودھ مہنگا کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وائٹنر اور اسٹیشنری کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ مسالہ جات اس سے پہلے فیز میں مہنگے کیے گئے تھے۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی آگے پہلے سے تو دوگنا بڑھ گئی ہوئی ہے، اور یہ جو گھی آئل ہیں یہ رمضان سے پہلے ہی انہوں نے بڑھا دیے ہیں۔ جب رمضان آئے گا تو تھوڑا قیمتیں کم کر دیں گے، یہ عوام کو ایک قسم کا لولی پاپ دیں گے۔ تو ان کو چاہیے کہ قیمتیں کم کریں گورنمنٹ، تاکہ عوام جو ہے وہ آسانی سے اپنے یہ وہی حکومت ہے جو کہ کہتی تھی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر، خوردنوش کے اوپر سبسڈی نہیں دے رہی نون لیگ، اور اب جو ہے اس پر اتنی مہنگی کہ اوپن مارکیٹ سے لیگ نے ان سے زیادہ سبسڈی دی تھی۔ اس وقت عوام بھی خوشحال تھی، آسانی سے ہر چیز مہیا ہو جاتی تھی ان کو، عوام کو، یہ یوٹیلیٹی سٹور۔ اب تو پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ گھی آ رہا ہے جی، آئل آ رہا ہے، چینی آ رہی ہے، پھر ملے گا، یہ وہ عوام کو ایسے ہی انہوں نے راضی کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کئی اور بھی شہری میرے ساتھ موجود، آپ کیا کہیں گے؟ گھی آئل بھی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، بنیادی ضرورت کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ اب تو جینا ہی مشکل ہے بھائی جان۔ دیکھیں نا کہ پہلے گھی گرم ہوتا تھا تو ہاتھ جلتا تھا، اب ٹھنڈا ہے تو ہاتھ لگانے سے ہاتھ جل جاتا ہے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بل بھی ادا کرنا ہے اور گھر کا دار و مدار بھی چلانا، وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 وقت کی روٹی کمانا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت، خاص طور پر دودھ، بچوں کا دودھ، اسٹیشنری، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وائٹنر اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جس کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق منڈے یعنی آج سے ہونا تھا، اور ہو رہا ہے۔ آج سے شہریوں کو مہنگائی کی نئی جو طوفان کے مطابق اگر بات کی جائے تو قیمتیں بڑھا۔ اچھا شہراز بٹ، لوگوں کا کیا موقف ہے یہ تو ہم نے جانا، اپنے لوگوں سے سنوایا، تو بتائیے گا کہ سٹیزن پورٹل کی جو ہے وہ پبلسٹی کی جا رہی ہے، حکومت کی جانب سے کھلی کچہریاں بھی لگائی جا رہی ہیں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ایکٹیو رہنے کا بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر، خصوصاً یوٹیلیٹی سٹورز پر پرائسز کے حوالے سے کنسسٹنسی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی بات ہوئی حکومتی کسی نمائندے سے، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے؟ کنٹرول کمیٹیاں تو بالکل اس وقت جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، اور جو پرائس مجسٹریٹ اور ڈی سی انتظامیہ کی جانب سے اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کمپنیز جو ہے وہ قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور کمپنیز کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے خاموشی جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اس وقت خاص طور پر بات کی جائے اشیاء خوردنوش، ان اشیاء خوردنوش کے حوالے سے جو کہ بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ پچھلے 1 سے 2 مہینے کے اندر کیا گیا ہے، یعنی جنوری سے سال نو کے حوالے سے بات کی جائے تو 4 دفعہ قیمتیں جو ہیں صرف آئل اور دالوں کی بڑھائی گئی ہے۔ تو کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں، کوئی انتظامیہ، کوئی ڈی سی مہنگائی یومیہ بنیادوں پر بڑھنے لگی ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہراز بٹ آپ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کے وار جاری ہیں۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں میں 3 مریض جاں بحق ہو گئے، 30 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔
टोबा में 24 घंटों में 4 अफराद कोरोना का शिकार। चनियोट में 24 घंटों में एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के कारीवार जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों में 3 मरीज जान बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि नीम हकीम फैसलाबाद के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। डी टाइप कॉलोनी की 3 साला बच्ची बाईं टांग से माजूर हो गई। निजी डिस्पेंसरी के डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। चिल्ड्रन अस्पताल ने भी पट्टे में इंजेक्शन लगना टांग मुतासिर होने की वजह बता दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अज़हर हुसैन से। अज़हर, बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से ताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करने पर जो शहरी ज़िंदगी हैं वो ताइयों के रहम करम पे हैं। ऐसे में 3 साला अजल्फा जो कि समुद्री रोड मुराद कॉलोनी की रहायशी है, ताई के हत्थे चढ़ने के बाद बाएं टांग से जो है वो चलने फिरने से मजबूर हो चुकी है। हमारे साथ मुतासरा बच्ची के वालिद मौजूद हैं। जी भाई, किस तरह करके बात है? जी, बेटी को बुखार हुआ था, उसके बाद इसको शमीम अख्तर वेलफेयर डिस्पेंसरी जो वहाँ पे लेके गए थे। उन्होंने बोला जी इंजेक्शन लगाना है, कोई मेडिसिन दी और इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद टांग पे वजन नहीं डाला बेटी ने, ठीक है। तो फिर वो मसाई मसूई का बोलते रहे, वो करते रहे। उसके बाद वो ठीक नहीं हुई तो चिल्ड्रन में लेके गया, लाइट में ले गया। फिर उन्होंने बताया कि ये चीज़ जो है ना, इसके पट्टे में इंजेक्शन लगा है, उसकी वजह से इसका जो पट्टा है ना वो कमज़ोर हो गया है। कार्रवाई के लिए कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? दरख्वास्त वगैरह दी है, डिप्टी कमिश्नर को भी दी है फैसलाबाद में, और उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ को भी दी है, वज़ीर आला पंजाब को भी दी है। तो अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है। तो अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी और यही अपील की जा रही है कि जो इस तरह के ताई गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि बच्ची चलने फिरने से माजूर हो चुकी है। अज़हर हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीएचए फैसलाबाद का माली बहरान मुलाजमीन के लिए वबाले जान बन गया। नॉन सैलरी बजट में 15 करोड़ रुपए की कमी। इश्तिहारी मुहिम का नोटिफिकेशन भी जारी न हुआ। पीएचए का वर्क चार्ज मुलाजमीन को फारिग करने पर गौर। चारों टाउन इंचार्ज से मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रमजान मिर्जा ने। रमजान, बताएगा तफसीलात तलब कर ली हैं मुलाजमीन की? जी बिल्कुल, इस वक्त पीएचए को माली बहरान का सामना है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से जो नॉन सैलरी बजट है 15 करोड़ रुपए उसका कट लगाया गया। दूसरी जानिब जो इश्तिहारात हैं वो कॉरपोरेशन के पास गए और अभी भी जो टैक्स कलेक्शन है वो कॉरपोरेशन की जानिब से की जा रही है। और हुकूमत की जानिब से ये फैसला भी किया गया था लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत कि जो टैक्स कलेक्शन है वो दोबारा से पीएचए के पास चली जाएगी। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो सका, जिस वजह से पीएचए को इस वक्त तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से पीएचए इंतज़ामिया की जानिब से जो वर्क चार्ज हैं उनको जो है वो फारग करने का इम्कान भी जो है वो जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जितने जो चारों टाउन इंचार्जेस हैं उनको इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मुरासला भिजवाया गया है, जिसमें जो मौजूद वर्क चार्ज हैं उनकी तफसीलात तलब की गई हैं। और इस हवाले से मुमकिन तौर पर यह फैसला हो सकता है कि पीएचए चूँकि पहले ही मुलाजमीन की कमी का सामना है, तो एक बार फिर अगर वर्क चार्ज मुलाजमीन को फारिग किया जाता है, एक तरफ जो उनका रोजगार है वो फैसलाबाद माली बहरान का शिकार है। रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमती सब्सिडी और ज़लई आलात में रियायत रजिस्ट्रेशन से मशरूत है। फैसलाबाद के काश्तकारों के लिए मुश्किल तरीक़ाकार की वजह से खादों पर सब्सिडी ख्वाब बन गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने महकमा मामले से मदद लेने की हिदायत कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताएगा ये क्या मामला है? फार्मर्स की सहूलियात के लिए तो अभी जो मौजूदा हुकूमत की जानब से उन्हें सब्सिडी मुहैया की जा रही है, ज़राई आलात पर सब्सिडी दी जा रही है, खादों पर दी जा रही है। लेकिन इसमें वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जो भी फार्मर्स अपनी सब्सिडी लेना चाहता, अपनी सहूलियात लेना चाहता, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जो फार्मर रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें बेहतर सहूलियात मिलती हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी हवाले से यहाँ पर काश्तकारों से बात की जाए तो वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल बताया जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी के मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या प्रोसीजर है फार्मर के रजिस्ट्रेशन होने का और उसको आसान बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन है ये अब इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी सब्सिडी की स्कीम है, उनसे सिर्फ वही फार्मर जो है इस्तेफ़ादा कर सकते हैं जो कि रजिस्टर होंगे।
तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। हमारे दफातर में फील्ड असिस्टेंट के पास, एग्रीकल्चर ऑफिसर महकमा मामले से मदद लेने की हिदायत कर दी है। अब्दुल रहमान, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला मुनज्जम गिरोह सरगर्म हो गया है। कड़ियांवाला के शहरी के साथ 3.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आ गया है। कोई और जगह दिखाई, मुंतकिली किसी और जगह की कर दी। 4 नामजद मुल्जिमान समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला मुनज्जम गिरोह सरगर्म अमल है। खुड़ियांवाला के रिहायशी शहरी के साथ 3.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आ गया है। तफसीलात जान लेते फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, बताएगा 4 नामजद मुल्जिमान समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ऑनलाइन सर्विसेज के नाम पर जो है शहरियों के साथ फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस तरह के वाक़यात मुसलसल रोज़मर्रा हो रहे हैं, जिससे शहरियों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तहम थाना खुड़ियांवाला के इलाका में एक शहरी को कमर्शियल जगह पर प्रॉपर्टी बेचने का झांसा देकर मुल्जमान ने 3.5 करोड़ रुपए हथिया लिए, जिसका मुकदमा भी मुतासरा शहरी हाफिज उस्मान की मदयत में थाना खुड़ियांवाला पुलिस ने 4 नामजद और 5 नामालूम मुल्जमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मुतासरा शहरी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्जमान ने उसको कमर्शियल जगह पर रकबा दिखाया और कहा कि ये प्रॉपर्टी इसको बेच दी जाएगी। बाकायदा तौर पर फ्रॉड और धोखाधड़ी के साथ वो जगह भी उसको बेच दी गई और 3.5 करोड़ रुपए हथिया लिए गए। लेकिन बाद में पता चला कि जो जगह उसको दिखाई गई है बिल्कुल उसके बरस जगह उसको बेची गई है, यानी कि असली जगह दिखाकर नकली जगह फ्रॉड के साथ उसको बेच दी गई। ताहम मुल्जमान को ताहाल पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसपे पुलिस का कहना है कि वाकई की तहकीकात भी जारी हैं, जल्द ही मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि इससे ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म अमल है। आप तफसीलात से आगाह कर रही थी फरजाना सिद्दीक। हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जही, लेबर कोर्ट के स्पेशल जज की तैनाती 2 माह बाद भी ना हो सकी। साइलीन को मुश्किलात का सामना है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जुही सामने आई है। लेबर कोर्ट के स्पेशल जज की तैनाती 2 माह बाद भी ना हो सकी है। साइलीन को मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा राना जाहिद नजीर से। जाहिद, बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से जो है वो पंजाब फैसलाबाद में लेबर कोर्ट के जज की तैनाती जो है वो नहीं हो सकी। दिसंबर में लेबर कोर्ट फैसलाबाद के जज अब्दुल हक जप्पा का जो है वो ट्रांसफ़र हो गया था लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद, लेकिन उसके बाद से अब तक जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद में लेबर कोर्ट के जज की तैनाती ना करना एक सवालिया निशान है। हमारे साथ चौधरी खुर्रम शहजाद एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। खुर्रम साहब, बताइएगा क्या समझते हैं हुकूमत क्यों संजीदा नहीं ले रही है? इंसाफ की फराहमी जो है वो अवलीन तरजीह होती है हर हुकूमत की, क्या समझते हैं आप? इसमें जो सारी नेग्लिजेंसी है सूबाई हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि हाई कोर्ट के साथ मशावरत करके जल्द अज जल्द यहाँ पे जो है जज तैनात करें, क्योंकि इससे जो तमाम हमारी लेबर है, मज़दूर है, उनके हकूक़ वाबस्ता हैं और तकरीबन बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो सूबाई हुकूमत को चाहिए कि ये हाई कोर्ट के साथ मिलकर जल्द अज जल्द, जो भी 2.5 माह हो चुके हैं, 2.5 माह हो चुके हैं, अभी तक कोई जज तैनात नहीं हुआ, तो ये जो सारी नेग्लिजेंसी है सूबाई हुकूमत को जाती है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि हुक्म इम्तनाई जो हासिल करने के लिए मुलाजमीन इस अदालत का रुख करते हैं, जब कि जज ही तैनात नहीं है तो उन्हें इनके जो ड्यूटी जज होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन वो भी बाजू का छुट्टी पर होते हैं, तो कैसे देखते हैं उन्हें जलील होना पड़ता है उन मुलाजमीन को? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल जलील होना पड़ता है, तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि जल्द जल्द जो भी है जज तैनात किया जाए, ताकि जो मजदूरों के हकूक़ हैं सबसे पहले तरजीही पंजाब हुकूमत की जानिब से लेबर कोर्ट जज की तैनाती 2 माह बाद भी नहीं हो सकी है। राना जाहिद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, महकमा कस्टम्स की जानिब से पकड़े जाने वाला नॉन कस्टम पेड और जाली सिगरेट्स की नीलामी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कार्रवाइयों में पकड़े जाने वाले तमाम सिगरेट्स तल्फ किए जाएंगे। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा तमाम सिगरेट्स तल्फ किए जाएंगे? महकमा कस्टम्स की जानिब से मुल्क में स्मगल शुदा सिगरेट की फ़रोख्त की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है और कवानीन में तब्दीली कर दी गई है, और जो पकड़े जाने वाले स्मगल शुदा सिगरेट हैं उनकी नीलामी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे कबल कस्टम्स की जानिब से जो नॉन कस्टम पेड या जाली सिगरेट पकड़े जाते थे तो फिर बाद अज़ां उनकी ऑक्शन कर दी जाती थी। ताहम अभी कस्टम्स की जानिब से हुकूमती हिदायत पर यह कदम उठाया गया है और पकड़े जाने वाले सिगरेट्स की
ऑक्शन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है ताकि नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स का जो मुल्क में चलने वाला धंधा है उसके दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। कस्टम हुकाम के मुताबिक इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस जो अफराद थे वो गैर कानूनी तरीके से सिगरेट मुल्क में लाते थे, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जाता था। तो उसकी रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाया गया है। और जबकि इस हवाले से ये इकदाम भी उठाया जाता था कि जो स्मगल शुदा सिगरेट थे उनके जाली दस्तावेजात तैयार किए जाते थे, और अगर कहीं पर किसी शाहराह पर नकलो हमल के दौरान कस्टम हुकाम की जानिब से उसको रोका जाता तो वो जाली दस्तावेजात दिखाए जाते थे कि ये उन्होंने फलां ऑक्शन से हासिल किए या नीलामी में खरीदे हैं। ताहम इस सारे मामले की भी रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाया गया है। कार्रवाइयों में पकड़े जाने वाले तमाम सिगरेट्स तल्फ किए जाएंगे। उमैर अजमत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वासा फैसलाबाद की मुबैना गफलत बड़ी बीमारियों को जन्म देने का सबब बनने लगी है। डीएसपी निशादाबाद दफ्तर और थाना सरगोदा रोड के बाहर नाकिस सीवरेज निजाम, कई माह से जमा गंदा पानी, निकासी आब नहीं निकाला गया। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि कई माह से जमा गंदे पानी की निकासी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, वासा हुकाम की नाअहली की वजह से फैसलाबाद भर में सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका है। इस वक्त हम थाना सरगोदा रोड के बाहर मौजूद हैं, जहां पर गुज़िश्ता कई माह से पानी खड़ा है। यहां पर गंदे तालाब बन चुके हैं, गंदे जोड़ बन चुके हैं, जिनमें ताफुन उठ रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि यहां पर जो पानी खड़ा है उसकी माहियत बता रही है कि ये गुज़िश्ता कई माह से ये पानी खड़ा है। यहाँ पर आने वाले साइलिन और पुलिस एहलकारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पुलिस हुकाम का इस हवाले से जो थाने के जिम्मेदारान हैं उनका ये कहना था कि इस वजह से यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरह डेंगू का भी खदशा पैदा हो गया क्योंकि मच्छरों की भरमार रहती है। इसलिए कि बिल्कुल 7 फुट के फासले पर डीएसपी निशादाबाद का दफ्तर है, जहां पर 5 थानों के रहायशी सालीन अपने मसाइल हल करवाने के लिए आते हैं, मगर उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि थाना के अंदर पार्किंग की जगह नहीं है, जबकि थाने के बाहर ये गंदे तालाब बनने की वजह से लोग पार्किंग नहीं कर सकते। सड़क के रिहायशियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तैयब मकबूल आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब रुख करेंगे मौजा तालिब चनियोट का, जहां पर प्राइमरी स्कूल गंदे पानी की जद में आ चुका है। सीवरेज का पानी है। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ के नवाही इलाके मौजा ताले में, और यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की जो दीवारें हैं वो सीवरेज की जद में आ चुकी है। मेरा कैमरामैन अलीजेब आपको दिखा भी सके। ये चिन्योट का इलाका मौजा तालिब है, और यहाँ पर जहाँ इलाका मकीन सीवरेज के हवाले से शदीद परेशान है, तो वहीं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजा तालिब की जो मरकजी दीवार है जो वो भी जो है वो इस सीवरेज के पानी की जद में आ चुकी है। मेरा कैमरामैन इस तरफ दिखा सके तो ये जो है वो इलाका है, और यहाँ पर सीवरेज मसाइल इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। बारहा दफ़ा इलाका मकीनों की जानब से ये दरखास्तें भी दी गई, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। भाईजान आप कहिएगा, पूरे इलाके का ये वाहिद स्कूल है और यहाँ पर जो दीवार है वो सीवरेज की जद में आ चुकी है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सारे पहले ही 2-3 दफ़ा दीवार पानी का सारा जो पूरे महल्ले का पानी है मौजा तालब तो सारा इतने इकट्ठा होंदा, तो ये पहले भी 2 दफ़ा दीवार गिर चुकी है। तो साडा इंतजामिया नाल यही मुतालबा कि मेहरबानी करके ना ਇਹਦਾ निकासी का कोई खास इंतजाम किया जाए। इंतजामिया से अपील की जा रही है आवाम की कि यह मसला हल किया जाए। अब्दुल कदीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मंसूबा खटाई का शिकार हो गया। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का मंसूबा खटाई का शिकार हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 2019 और 20 के लिए एक मंसूबा जो है वो मंजूर हुआ था 16 करोड़ रुपए की लागत से कि बीएस ब्लॉक बनना है, लेकिन 19 गुजर गया, 20 गुजर गया और 21 जो है वो जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मंसूबे पर एक भी ईंट नहीं लग सकी। क्यों नहीं लग सकी, ये तमाम सवाल जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर से। दरअसल किस तरह समझते हैं, अगर बॉयज़ कॉलेज की बात करें वहाँ पर तो मंसूबा मुकम्मल होने जा रहा है, तो गर्ल्स कॉलेज में तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्या वजूहत है वहाँ में? वहाँ पे हमें इंक्रोचमेंट का एक मसला है जो हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इन कोलैबोरेशन है, और अभी मेरी बात हुई है उमर जावेद साहब से भी हुई है, डीसी साहब से भी हुई है, और सुमैरा अमरीन साहिबा जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर गोजर की वहाँ से भी है। वो इंक्रोचमेंट का बड़ा पुराना मसला है जो 1997 में एक फैसला हुआ और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो पार्शियल हुई थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं। पुराना मसला चलता आ रहा है। शाहिद महमूद आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
अब आपको बताएं, महकमा रेलवे के पास यार्ड स्टाफ मुलाजमीन की कमी है। फैसलाबाद में एक मुलाजिम से 3 ड्यूटियां ली जाने लगी। स्टेशनर पर सिग्नल और इंटरलॉकिंग सिस्टम मफलूज होकर रह गया है। इसी पर बात कर लेते हैं वैस अली से। वैस बताइएगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम और सिग्नल सिस्टम मफलूज होकर रह गया है। बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन जो है वो गैर कानूनी तौर पर सर अंजाम दिया जा रहा है और इसके साथ साथ मुलाजमीन का बहरान है। एक मुलाजिम जो है वो 3 मुलाजमीन की ड्यूटियां के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देने पर मजबूर है और इसके साथ साथ स्टेशन के सिग्नल और इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह चुका है। इसी हवाले से पाकिस्तान यार्ड एसोसिएशन की जानिब से लाहौर हेड क्वार्टर को आगाह कर दिया गया है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और इसके साथ साथ मुलाजमीन की शदीद कमी है, जिसकी वजह से एक मुलाजिम से 3 मुलाजमीन की कमी है। वैसे ही आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वजारत कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम कोलंबो में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शिरकत करेंगे। फैसलाबाद से टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड जफर इकबाल सरवर और साबिक सदर ऐवान सनत व तिजारत फैसल जिया अलमदार भी वफ्द का हिस्सा होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। मोहम्मद बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, वजारत कॉमर्स की जानिब से श्रीलंका के अंदर एक बाहमी तजारत को फ़रोग देने और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद होगा बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना और जिसका क़यादत करेंगे वज़ीर इमरान खान। तो फैसलाबाद से भी 2 बड़े एक्सपोर्टर्स के नाम जो है उसके अंदर शामिल हैं। जफर इकबाल सरवर जो कि टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सैयद ज़िया अलमदार जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। जफर इकबाल सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। जफर साहब, कैसे देखते हैं कि आपका नाम एक बड़ा वफद है, इमरान खान को के हमरा होंगे आप, कैसे देखते हैं ऐसे ट्रेड और ऐसे वफद और ऐसी कॉन्फ्रेंस के साथ तक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ाने के अंदर और नए जो एडवेंचर्स हैं, नए वेंचर्स उन्हें ओपन करने के लिए, नई मार्केट्स हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए मददगार साबित होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि मैंने मुतअद्दिद बार ये बात की है कि अब हमें नॉन ट्रेडिशनल और इस तरह की मार्केट की तरफ मूव करना पड़ेगा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ये बहुत ही स्मार्ट मूव है कि उन्होंने कॉमर्स जो एडवाइज़र हैं अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब, उनके एडवाइस के ऊपर श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस रखी, जिसके अंदर ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि और भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तकरीबन ये 20-22 के करीब बड़े हाई प्रोफाइल वफ्द है और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये पाकिस्तान के आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे ट्रेड, बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस और बहुत अच्छे हमारे पॉलिटिकल रिलेशन की तरफ बहुत अहम कदम है। ये बहुत अहम कदम है, खासतौर पर। जी ठीक है, मोहम्मद बिलाल डोगर आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बाहर की आमद के साथ ही बागों में रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। मुख्तलिफ रंग के फूलों से मुअत्तर हवा का इंसान पर गहरा असर। फैसलाबादियों के लिए भी बाहर खुशगवार एहसास, हर कोई लुत्फानंदोज होने लगा। मजीद बात करेंगे शाहिदा घुम्मन से। शाहिदा बताएगा। ठंडक ने हथियार डाले तो धूप भी अच्छी लगने लगी। मौसम बहार की आमद हुई तो हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए दिखाई दिए। पत्तों और दरख्तों पर भी नई कॉम्पलें निकलना शुरू हुई तो शहरी जो हैं वो भी इस ठंडे मीठे मौसम को एंजॉय करने लगे। और फूल तो मौसम बहार तो हर किसी को बहुत ही अपने दिल को जो है वो लुभाता है और हर तरफ खिले हुए फूल जो है वो शहरी को भी मुतवज्जा करने लगे। शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे वो मौसम बहार के बारे में। आप बताइएगा, मौसम बहार की आमद है, फूल भी हर तरफ खिले हुए हैं, नई कॉम्पलें खिली हैं, कैसा देखते हैं कि मौसम बहार में शहरियों को मूड कैसा हो जाता है? मूड बहुत अच्छा हो जाता है। पहले पतझड़ था, पत्ते गिरने लगे थे, समझ नहीं आती थी मौसम, मूड अच्छा नहीं रहता था, लेकिन जैसे ही अब पत्ते खिलना शुरू हैं मूड भी अच्छा हो गया है। और क्योंकि अब ठंड खत्म हो रही है, लेकिन इस हल्की ठंड हल्की धूप के अंदर ये पौधे पतझड़ बहुत खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ लोगों ने जो है बागों का भी रुख किया है। हम लोग जाते हैं हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए, तो हर रोज़ वो खिलते हुए गुलाब फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके साथ साथ जो है अब अच्छे अच्छे गाने भी याद आते हैं कि इंसान अच्छे मूड में अच्छे अच्छे गाने गाए ताकि इंसान का मूड और मज़ीद अच्छा हो जाए। जी, मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। और इस जो मौसम बहार में तो यकीनी तौर पर जो फैसलाबादी कुड़ियाँ हैं उनका कहना है कि बड़े खूबसूरत से गाने भी याद आ जाते हैं और गुनगुनाने को भी दिल करता है कि अच्छे अच्छे गाने गाएं, क्योंकि ये मौसम बहार है ही ऐसा है कि इसमें हर बंदे का जो मूड है वो फ्रेश हो जाता है। क्योंकि पतझड़ में जब मौसम पत्तों के झड़ने का होता है तो मूड भी ऐसा होता है, यकीनी
طور پر یہ لگ رہا ہے کہ اب موسم بہار نے ہر شہری کا جو ہے موڈ اچھا کر دیا ہے. شہری جو ہیں وہ باغوں کا رخ کریں تاکہ پھولوں کو دیکھ کر جو ہے انجوائے. موسم بہار میں شہری ٹھنڈے میٹھے موسم کو انجوائے کرنے لگے ہیں. شاہدہ گھمن آپ آگاہ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.